Hello students, this is a 14th chapter Ecosystem and Energy Flow. So in the previous part of the video we have studied the four basic processes जिसमें था productivity, decomposition, nutrient cycling and energy flow. We first gave a very We first gave a quite small definition for all these processes. पहले हम लोग ने प्रोडक्टिविटी किया, देन वी डिड डिकम्पोजिशन, उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो. Then we gave a very good example. This example is very important, students. This is very important, very important exam point of view से ये पूछता ही है. ओके यहाँ पे एग्जाम्पल्स में हमें सब समझ में आ गया कि क्या प्रोसेसेस है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, क्या फैक्टर्स है, बेसिक प्रोसेसेस का क्या काम है. दिस इज़ ऑल वी अंडरस्टूड इन दिस एग्जाम्पल. इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव स्टडिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी में हम लोग ने जीपीपी और एनपीपी के बारे में पढ़ा. जीपीपी माइनस आर इज़ रेस्पिरेशन निकालेंगे तो हमें एनपीपी मिलेगा. ओके एंड इट इज़ मेजर्ड इन gram per meter square per day. We studied this. Then the annual net primary productivity of whole biosphere is approximately 750 billion tons dry weight of organic matter. Of this, the productivity of the ocean is only 55 billion ton. Rest of course is from the land-based ecosystem. We studied this. Then we studied the secondary productivity क्या है. It is the rate of formation of new organic matter by consumer. Okay, by consumer. This is clear. Then moving to the next today's topic, वो है हमारा decomposition. Decomposition या decomposers क्या है. Decomposers कौन है. Decomposers break down complex organic matter into inorganic substances. Decomposers क्या करते हैं. complex organic matter को inorganic substance में break करते हैं, like carbon dioxide, water and nutrient, and the process is called decomposition. Decomposers क्या कर रहे हैं. Decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrient, and the process is called decomposition. Dead remains of plants and animals, including fecal matter, constitute detritus, which is the raw material for decomposition. We have studied about this term in the previous parts also. जो dead remains है plants और animals का, fecal matter का और detritus है, ये सारा कुछ मिला के हमारा decomposition का रॉ मटेरियल बनता है. ये रॉ मटेरियल है, उसे मिट्टी में डाल दिए तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आएंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ गए तो वहाँ पे फिर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. इट इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस. ओके द इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ द इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है. In the decomposition, in the process of decomposition, there are some important steps. पहला है fragmentation, leaching, catabolism, humidification, and lastly mineralization. I'll repeat. Fragmentation. See, fragmentation का F. Then leaching, catabolism, humidification and mineralization.
FLCHM, इस तरीके से याद रखना, FLCHM. F से consider someone's name as Fariha या Fahad, everything. For example, F went to give LC to the HM. Clear? ये हो गए important steps हमारे in the process of decomposition, fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization. Then detritivores कौन है? हमारे earthworms है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. तो ये सारे क्या करते हैं? ब्रेक डाउन डिट्रीटस मतलब रॉ मटेरियल, जो भी चीज़ का रॉ मटेरियल है वो. डिट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डिट्रीटस into smaller fragment or particles, and this process is called fragmentation. जब ये लोग स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं तब इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस. मूविंग फॉरवर्ड, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, water soluble inorganic nutrient go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. Bacterial and fungal enzyme degrade detritus into simpler inorganic substances, and this process is called as catabolism. It is important to note all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. Okay. लीचिंग के प्रोसेस से क्या होता है? जो वाटर सल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है दे परकोलेट मतलब नीचे जाके बैठ जाते हैं. इनटू द सॉइल हॉरिजॉन, नीचे परकोलेट हो गए, नीचे बैठ गए. एंड देन दे गेट पर्सिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट. फिर वो लोग अपने आप को चेंज कर देते और एक सॉल्ट बन जाते हैं. ये हो गया हमारा लीचिंग प्रोसेस, जहाँ पे वाटर सल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गेट परकोलेट. क्लियर विद दिस? देन bacterial and fungal enzyme degrade detritus into simpler inorganic substances. जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम है वो डिग्रेड करते हैं, मतलब जो हमारा डिट्रीटस है उसे ख़त्म करते हैं, उसे खा लेते हैं. Degrade detritus into simpler inorganic substances. This process is called catabolism. अभी हमने कितने प्रोसेस पढ़ा? डिकम्पोजिशन में फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, सेकेंड लीचिंग पढ़ा, थर्ड कैटाबोलिज्म पढ़ा. एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू नोट दिस कि सारे जो इम्पॉर्टेंट टू नोट के जो जितने भी अबव स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, ये सारे ऑपरेट होते हैं साइमल्टेनियसली ऑन द डिट्रीटस. ये सारे ऑपरेट होते हैं एक के बाद एक. पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, उसके बाद लीचिंग होगा, उसके बाद कैटाबोलिज्म होगा. ऐसे नहीं कि तीनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं. नो, everything is happening one by one, therefore they are called as steps, important steps. जैसे हम स्टेप्स लेते हैं, पहले एक स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, वैसे ही पहले फ्रेगमेंटेशन,
then leaching, then catabolism. Clear with this? Then हमारा डिकम्पोजिशन साइकिल है ये, ओके कि किस तरीके से डिग्रेड होता है, डिकम्पोजिशन होता है, वी विल अंडरस्टैंड. पहले एक ट्री ग्रो हुआ इन अ सॉइल, एक ट्री सॉइल में ग्रो हुआ. देन सम आर ईटन बाय हर्बीवरस, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंट्री फूड. देखो पहले ट्री ग्रो हुआ, यहाँ पे ट्री ग्रो हुआ. अब ये जो लीव है, अ लीव फॉल्स टू अ ग्राउंड, एक पत्ता नीचे गिर गया. उसके बाद क्या होता है, सम आर ईटन बाय हर्बीवरस, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंटर फूड वेब. हर्बीवरस प्लांट जैसे जो छोटे छोटे लीचेस होते हैं और अर्थवर्म्स होते हैं या छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं वो पत्तियाँ खा लेते हैं, वो लीफ को खा लेते हैं. बट और फिर उधर से एनर्जी हमारे फूड वेब में एंटर कर ली. बट किसी किसी के साथ क्या होता है, दे आर converted to mushrooms, some nutrient leach into soil by chemical action. Then उसके बाद soil rich in organic content. फिर उसके बाद ये मशरूम अर्थवर्म बना, मशरूम से सॉइल रिच हुआ ऑर्गेनिक कंटेंट में और कुछ एंटर किए इनटू केमिकल एक्शन. फिर उसके बाद मिनरलाइजेशन हुआ, फर्दर decomposition by decomposers, leaves partially consumed and begin to lose from and become litter. लीव क्या कर रही है, पार्शियली कंज्यूम कर रही है एंड बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर. ट्री ग्रो होता है, लीव्स गिरी, कुछ लीव्स फूड वेब में हर्बीवर्स जो हमारे प्लांट है वो लोग खा लिए, हर्बीवर्स एनिमल्स है वो लोग खा लिए, वो हमारी फूड चेन में उसकी एनर्जी एंट्री कर गई. कुछ लीव्स के साथ ऐसे होता है कि वो लोग केमिकल एक्शन का पार्ट बन गए. कुछ लीव्स मशरूम बन गए, मशरूम बने तो वो लोग अर्थवर्म खा लिया, अर्थवर्म खाए तो वो सॉइल रिच इन न्यू ऑर्गेनिक कंटेंट हो गया, जिसके वजह से वहाँ की सॉइल एक ऑर्गेनिक कंटेंट में रिच हो गई. उसके बाद उस पर मिनरलाइजेशन हुआ, फर्दर डिकम्पोजिशन हुआ बाय डिकम्पोजर्स. उसके बाद जो लीव्स है वो पार्शियली लूज़ होना है तो लूज़ हो गई एंड देन दे अगेन फॉल. तो ये पूरी जो साइकिल है वो इस तरीके से घूमती है. अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.